Most organelle proteins are synthesized in the cytoplasm from nuclear-encoded mRNAs. These proteins must be imported into the organelle. Special sequences, called signal sequences, target the protein to its proper organelle. Organelles contain protein translocator complexes that are required for this transport. Key players in this process are protein, a signal sequence, chaperonins, ATP, protein translocator complexes, and signal peptidase. Proteins destined for import into an organelle, such as in mitochondria or chloroplast, contain a signal sequence. This sequence acts as a targeting mechanism to ensure the protein is delivered to the proper organelle. In addition, chaperonin proteins aid in the import process. They become associated with a protein while it is still in the cytoplasm. This association requires energy from ATP. Chaperonins aid in unfolding the protein so it can travel through the organelle membrane. Here we see two chaperonins bound to the protein that will enter the mitochondria. Protein translocator complexes are embedded in the mitochondrial membrane. These are multi-protein complexes required for protein import. The protein being transported first attaches to the complex on the cytosolic side. The protein then moves into the mitochondria. As it enters the organelle, it is again bound by a chaperonin to prevent premature folding. Once the protein has fully entered the mitochondria, the first chaperonin is released and another class of chaperonins bind. Then a complex called the signal peptidase removes the signal sequence. Lastly, the protein is folded into its final shape and is ready to perform its proper function in the organelle. हेलो, किसको समझ में आया? सबा, किशोर? यस सर, मुझे तो समझ में आया कि दोबारा चलाऊं? समझ आया सर। पक्का? समझ आया। दोबारा चलिए। दोबारा देखो। Most organelle proteins are synthesized in the cytoplasm from nuclear-encoded mRNAs. These proteins must be imported into the organelle. Special sequences, called signal sequences, target the protein to its proper organelle. Organelles contain protein translocator complexes that are required for this transport. Key players in this process are protein, a signal sequence, chaperonins, ATP, protein translocator complexes, and signal peptidase. Proteins destined for import into an organelle, such as in mitochondria or chloroplast, contain a signal sequence.
This sequence acts as a targeting mechanism to ensure the protein is delivered to the proper organelle. In addition, chaperonin proteins aid in the import process. They become associated with a protein while it is still in the cytoplasm. This association requires energy from ATP. Chaperonins aid in unfolding the protein so it can travel through the organelle membrane. Here we see two chaperonins bound to the protein that will enter the mitochondria. Protein translocator complexes are embedded in the mitochondrial membrane. These are multi-protein complexes required for protein import. The protein being transported first attaches to the complex on the cytosolic side. The protein then moves into the mitochondria. As it enters the organelle, it is again bound by a chaperonin to prevent premature folding. Once the protein has fully entered the mitochondria, the first chaperonin is released and another class of chaperonins bind. Then a complex called the signal peptidase removes the signal sequence. Lastly, the protein is folded into its final shape and is ready to perform its proper function in the organelle. ठीक है, ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, हेलो हाँ सर। माइटोकॉन्ड्रिया का देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का तो क्लियर था। अभी थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, है ना, डिटेल में जाऊंगा, अभी डिटेल बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा ये न्यूक्लियर वाला भी देख लो, न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। The nuclear pore complexes are the only channels through which small polar molecules, ions, and macromolecules can travel between the nucleus and the cytoplasm. By controlling this traffic, the nuclear pore complex plays a fundamental role in the physiology of all eukaryotic cells. Most proteins and RNAs are too large to move through the complex by passive diffusion, and must move by an active process in which appropriate proteins and RNAs are recognized and selectively transported in a specific direction. Let's consider proteins imported from the cytoplasm to the nucleus. Only a subset of proteins can enter the nucleus, and they are allowed in by virtue of having specific amino acid sequences called nuclear localization signals. Nuclear localization signals typically consist of one or two short segments of basic amino acids. Nuclear localization signals are recognized by nuclear transport receptors called importins, which carry the cargo proteins into the nucleus. With its cargo attached, importin binds to specific nuclear pore proteins in the cytoplasmic filaments. By sequential binding to more interior nuclear pore proteins, the complex is translocated through the nuclear pore. At the nuclear side of the pore, the complex is disrupted by the binding of a protein called RAN to importin. RAN carries a molecule of GTP. This binding changes the conformation of importin, which then releases its cargo protein into the nucleus. The importin-RAN complex is then re-exported through the nuclear pore. A protein in the cytoplasm called RAN-GAP, for GTPase activating protein, stimulates RAN to hydrolyze its GTP to GDP, an action that triggers RAN to release importin back into the cytoplasm. RAN plays a key role in protein import and export. Note that while RAN is bound to GDP, it cannot disrupt the binding of importin to a cargo protein. In an action that prevents the depletion of RAN from the nucleus, the RAN GDP formed in the cytoplasm is transported back to the nucleus by its own import receptor, a protein called NTF2. In the nucleus, another protein called RAN-GEF, for guanine nucleotide exchange factor, stimulates RAN-GDP to release its GDP and pick up GTP.
In this form, RAN-GTP can disrupt the binding of importin and its cargo, triggering the release of the cargo in the nucleus. By the actions of RAN-GEF, found only in the nucleus, and RAN-GAP, found only in the cytoplasm, a steep gradient of RAN-GTP and RAN-GDP is maintained across the nuclear membrane, with RAN-GTP inside the nucleus and RAN-GDP in the cytoplasm. Similar to imported proteins, proteins are targeted for export from the nucleus by specific amino acid sequences called nuclear export signals. Nuclear export signals are recognized by receptors within the nucleus called exportins, which direct protein transport through the nuclear pore complex to the cytoplasm. RAN-GTP promotes the formation of stable complexes between exportins and their cargo proteins. Note that this same form of RAN does the opposite for importins and their cargoes. The effect of RAN-GTP binding on exportins dictates the movement of proteins containing nuclear export signals from the nucleus to the cytoplasm. Following transport to the cytosolic side of the nuclear envelope, GTP hydrolysis and release of RAN-GDP leads to dissociation of the cargo protein, which is released into the cytoplasm. Exportins are then recycled through the nuclear pore complex for reuse. ठीक है, ये क्लियर हुआ? हेलो, हाँ कोई डाउट रह गया? सर, कार्गो प्रोटीन क्या है? बहुत अच्छा सवाल। कार्गो प्रोटीन में जो प्रोटीन बनती है उनको ढोते हैं ना, फिर तो कार्गो उनको हम कार्गो प्रोटीन बोलेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, जो साइटोप्लाज्म को आएगा। बिल्कुल। कार्गो प्रोटीन में सारी प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो गई, जिनको ढोना है, जिनको ले जाना है, जिनको ट्रांसपोर्ट करना है, जिनको लोकलाइज करना है ना। ओके सर। ये वाला है। ये करना मुझे दिखाना था यार, कॉप प्रोटीन का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल एग्जाम में भी बहुत आ रहा है। देखो है कहाँ। हाँ ये है ना, सो इन फोल्डर। ये मुझे दिखाना है आपको, ये भी बड़ा अच्छा है। इस पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको दिखाई देता हूँ। तो ये वाला दिखाना है, ग्लाइकोसिलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। थोड़ा इजी हो जाता ना, एक माइंड में इमेज बन जाती है इसको देखने से। तो जस्ट अ मिनट। हाँ ये वाला मुझे दिखाना है, अभी पूरा समराइज करूंगा, इसको देख लो। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ईआर टू गोल्गी एपिडर्मिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बनी है, गोल्गी पहुंच कैसे रही है वो स्किप हो गया था थोड़ा, तो वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। तुम लोग को मैं ले गया हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
समझ में आ गया? वेसिकल फ्यूज हो गई, ठीक है। एक बार समराइज कर दूं, ठीक है। कौन कौन आ गया? डॉक्टर साहब आ गई। तो एक बार प्रोटीन ट्रैफिकिंग का रिवीजन कर देते हैं, राइट। सो व्हाट इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ओके। दिस इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, transport. So why we are talking about the transport? Because transport, synthesis is one place, and after synthesis they must be transported, and where they are synthesizing, that synthesis occur in the cytoplasm. राइबोसोम। राइबोसोम में होगी ना सिंथेसिस। जब राइबोसोम में सिंथेसिस होगी तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं, दिस इज एमआरएनए। एक तो फ्री राइबोसोम, देयर इज वन फ्री राइबोसोम, another one is membrane bound, okay, another one is membrane bound. So this is membrane bound, means they are attached to the endoplasmic reticulum. This is in the endoplasmic reticulum. थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है। अब जो भी प्रोटीन बन रही है, सो व्हाट विल बी द फेट? उनका फेट क्या होगा? ये प्रोटीन यहाँ से बन रही है, ये प्रोटीन बन रही है। सो इनका ट्रांसपोर्ट होना है डिफरेंट ऑर्गेनेल में। तो पहले क्या होना है? पहले देयर विल बी कलेक्शन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन, ठीक है। एंड देन फिर दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द गोल्गी body, Golgi bodies, okay. And after the Golgi bodies there will be modification. Here there will be modification, and then they will be transported to various organelles. तो आप ये देखो, न्यूक्लियस mRNA produced by transcription, ribosome and cytosol, and ribosome is starting protein synthesis. There are two type of protein. One, synthesis is completed. This is a completed, okay. So completed protein will undergo post translational modification, okay. Post translational modification होगा, यानी थोड़ा modification करके इनको भेज देंगे। कहाँ पे जाएंगे? They will go to the cytosol, nucleus, mitochondria, plastid, peroxisome, right? कहाँ जाएंगे? बोलो, cytosol, nucleus, mitochondria, plastid, peroxisome. यानी पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आफ्टर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन दे विल गो, एंड सम प्रोटीन विल बी पार्शियली सिंथेसाइज्ड, मींस दे आर स्टिल सिंथेसाइजिंग and attached to the endoplasmic reticulum, okay. So such a protein will undergo co-translational import, okay. Co-translational import. What is co-translational import? Co-translational import क्या है? मीन्स प्रोटीन भी बन रहा है साथ में। हाँ, प्रोटीन भी बन रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। जैसे प्रोटीन की कंप्लीट हो जाएगी वैसे इनकी ट्रांसपोर्ट भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। सो ऐसे कहाँ जाते हैं? दे अंडरगो Golgi apparatus, and they have two phase, secretory vesicle. Via secretory vesicle they can undergo plasma membrane, and via Golgi body they can form early endosome, they can form late endosome, and they can form the mature lysosome, ठीक है। they can form the mature lysosome, ठीक। तो ये हो गए लाइसोसोम वाले, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेक्रेटरी वेसिकल्स।
And completed protein यानी post translation modification goes to cytosol, nucleus, mitochondria. तो NLP nucleus, ओहो L तो ही नहीं है, NMP है. This is NMP, nucleus, mitochondria, plastid and peroxisome. तो इसका फार्मूला बना लो. पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन मतलब NMPP. ठीक है. और को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स. ठीक है ना. तो दिस इज द summary sheet of protein trafficking. Clear? So न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट अभी देखा हमने, पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट. सो फर्स्ट ये समझ लो. मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम ब्लैक मैजिक से बताता हूँ, अदरवाइज समझ नहीं आना आपको. दिस इज अ ब्लैक बोर्ड. क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. राइट. माइटोकॉन्ड्रिया. सो पहले तो समझो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, स्ट्रक्चर कैसा है. ये है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. ऐसे डॉट 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 बना लो. बाद में हम इसको क्रिस्टी बना लेंगे. ये क्या है? फोल्डिंग. कभी कभी लंबी फोल्डिंग हो जाती है. ठीक है. अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लग रहा है. राइट. अगर इसको देखो ऐसे, तो दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. दिस इज अ इनर मेम्ब्रेन and this is a which space? Intermembrane space. ओके. और ये क्या होगा? ये बाहर हो गया ना, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है. तो अब देखो, कोई भी प्रोटीन आ रही है गोल्गी बॉडी से, कैसे आएगी, ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये प्रोटीन कैसे आएगी? एक तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या है. एक तो मैट्रिक्स में आनी है. ठीक है. एक प्रोटीन है जो मैट्रिक्स में आएगी, और दूसरी प्रोटीन है जो आएगी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आएगी. ठीक है. तो अब इसका डिटेल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे, तो हम जरा बना देते हैं दूसरे कलर से. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होती है, उसको क्या कहते हैं? टॉम. ये क्या है? टॉम. और ये प्रोटीन जो आई, उसको अंदर ले जाने के लिए देयर अनदर प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एज अ टिम. और ये ट्रांसलोकेज है, यानी दिस इज अ ट्रांसलोकेज. ये इनर ट्रांसलोकेज. दिस इज अ इनर mitochondrial translocase. This is the outer mitochondrial translocase. ठीक है ना. यानी प्रोटीन इसी से आनी है. ठीक है ना. तो इसका नाम दिया गया, दो तरह की प्रोटीन, TIM23 और एक और होता है TIM22. ठीक है. सर एक तो दो टीम होते हैं. क्या बोल रहे हो? एक टोम और दो टीम. टॉम एक ही है ना, और टीम दो है, 22, 23. तो
टॉम एक टीम दो होते हैं। क्या बोल रहे समझ नहीं आई। टॉम एक ही है ना आउटर माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसलेशन, और टीम दो है, तो टीम दो रहते हैं और टॉम एक ही प्रेजेंट होता है। वो बाहर है ना, मल्टी कॉम्प्लेक्स है। दिस इज अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है टॉम, यानी आउटर मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेस। ये रिसीव करेगा, इसी के थ्रू जितनी प्रोटीन आनी है। तो जो भी प्रोटीन आ रही है, जैसे आपने देखा, देयर इज ए व्हाट इज अटैच्ड, देयर इज ए सिग्नल, सिग्नल इज अटैच्ड, ठीक है ना। और ये हमारी प्रोटीन है, दिस इज ए प्रोटीन, और ये सिग्नल है, ठीक है। दिस सिग्नल विल गाइड फॉर द बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। दिस इज टॉम इज हैविंग सिग्नल रिसेप्टर, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्नल रिसेप्टर होगा, इसको आइडेंटिफाई करेंगे और ये प्रोटीन सीधा चला जाएगा। अभी जाना शुरू हो गया, इसमें खाली अटैच कर देना है सिग्नल, ठीक है ना। अब ये सिग्नल आया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक आया। तो अगर इसको मैट्रिक्स में जानी है तो अलग कहानी है। मैट्रिक्स में जाने के लिए क्या यूज करेंगे, ये इधर अलाइन होना शुरू हो जाएगा, टीम 23 अलाइन हो जाएगा इधर, ताकि कॉन्टिन्यूअस वो बन जाए। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो बीच में अटक जाएगा ना, इनर मेम्ब्रेन में चला जाएगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस चैनल ऐसे बन जाएगी पाइप की जैसे। ये हो गई टॉम, ठीक है। ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गई, ये प्रोटीन आनी शुरू हुई, और दूसरी बन जाएगी टीम 23, टीम 23, ठीक है। अब ये प्रोटीन आनी शुरू हुई, ठीक है। ये प्रोटीन आ रही है along with सिग्नल सीक्वेंसेस, ये सिग्नल सीक्वेंस के साथ आ गई, ठीक है। और जैसे आई, ये आई कहाँ, मैट्रिक्स में आ गई। कहाँ पे आ गई, दिस इज एंटरिंग इनसाइड द मैट्रिक्स। ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में आने के बाद क्या होगा, देयर विल बी सिग्नल पेप्टिडेज। अब सिग्नल पेप्टिडेज क्या काम करेंगे, इसको कट करेंगे, इस सिग्नल को, इस सिग्नल को कट करेंगे। सिग्नल कट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्रोटीन पूरा फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था एक नया मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज चैपरॉन्स। चैपरॉन्स, इसका नाम क्या है, बिप। मैट्रिक्स में अटैच होगा चैपेरा। हाँ, फिर मैट्रिक्स में ही चैपरॉन अवेलेबल है ना, बाहर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाहर तो कोई मतलब ही नहीं है। कौन मैसेज दे रहा है, अच्छा अच्छा दिखा रहा हूँ, अब डायग्राम ही दिखाता हूँ। रुक जाओ, अभी तो डायग्राम बना रहा था मैं। कहाँ चला गया सारा डायग्राम, अच्छा नीचे है। अरे कहाँ चला गया सारा डायग्राम, कल ये पढ़ाया था। दो तरह की प्रोटीन होती है, सिंगल पास टोपोलॉजी की और मल्टीपल पास की, ठीक है ना। ये चीज मैंने पढ़ाई थी। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर
मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो, ईआर ल्यूमेन की बात कर रहे हो, साइटोसोल की बात कर रहे हो, तो ईआर ल्यूमेन में कुछ इस तरह के जो है ट्रांसलोकेज होते हैं, जिसमें कि स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस अटैच होने के लिए एक जगह होती है, ठीक है ना। कोई भी प्रोटीन होती है तो दे कैन हैव टू काइंड ऑफ, एक तो ये सिग्नल सीक्वेंसेस जो अटैच होते हैं, सिग्नल सीक्वेंसेस के अलावा भी एक सिग्नल अटैच हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टॉप सीक्वेंसेस, है ना, स्टॉप सीक्वेंसेस। तो स्टॉप सीक्वेंसेस हो सकते हैं। अब मैं तुम्हें पूरा डायग्राम दिखाता हूँ। सेकंड टाइप के होते हैं जिसमें कि स्टॉप सीक्वेंसेस नहीं होंगे, सिर्फ स्टार्ट होंगे, जो अंदर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये कई तरह के होते हैं, मल्टीपास टोपोलॉजी, और कई तरह के एंकरिंग होती है सीक्वेंसेस की। तो इतने कॉम्प्लेक्स में मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी आपको सिंपल सिंपल बताऊंगा। अब आ जाओ डायग्राम पे। टीम टर्म कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया। ये है सिग्नल सीक्वेंसेस, ठीक है ना। अभी देखो ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, और ये है सी टर्मिनल, आर्जिनाइन रिच है इधर, ठीक है ना। ये देखो आर्जिनाइन है, रिपीटेड सीक्वेंस आर्जिनाइन है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में मैथिलीन है। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था। देयर आर out in outer membrane, this is the outer mitochondrial membrane, है ना। outer mitochondrial membrane में you can see this is a TOM complex, यानी outer membrane translocase, जो कि बाहर से किसी भी प्रोटीन को रिसीव करेगा, प्रोटीन ट्रांसलोकेटर है ये एक तरीके से। और ये ट्रांसलोकेशन चैनल है। ऐसा टीम कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस इज फॉर्म ऑफ वेरियस टीम, है ना। टीम 2, टीम 3 ऐसे करके बहुत सारे टीम से बना होता है। तो अब इनर माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, टीम 23 कॉम्प्लेक्स है। ये बाहर है ना, बाहर में टॉम है। अंदर की तरफ देखो, ये अंदर की तरफ बात हो रही है, इसमें टीम 22 कॉम्प्लेक्स है और टीम 23 कॉम्प्लेक्स है, ओक्सा कॉम्प्लेक्स है। 3 तरह के है, ठीक है। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है कि यहां से जो चीज आए, है ना, या तो ये टीम 23 के थ्रू जाएगा, ठीक है, या तो इनके थ्रू आएगा, टीम 22 के थ्रू। लेकिन वो कंडीशन कौन सी है? जब वो टीम 23 के थ्रू आएगा या टीम 22 के थ्रू आएगा, और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में तो ओक्सा कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज द ओक्सा? दिस इज अ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी, ठीक है ना। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी इनकी तरह होता है, ठीक है ना। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेशल है, जो बाहर से आए हुए प्रोटीन को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता था, CSIR में क्वेश्चन पूछा था 2018 में दिसंबर में, कि अगर कोई प्रोटीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आना चाहती है तो कौन सा रूट लेगी? टॉम को तो यूटिलाइज करेगी, कोई और रास्ता नहीं है ना। लेकिन अब टीम 22 के थ्रू जाएगी या टीम 23 के थ्रू जाएगी, ये क्वेश्चन है। ये कैसे बताओगे सर? क्वेश्चन बता फिर से। क्वेश्चन है कि देखो, एक तो प्रोटीन ट्रांसलोकेट होगी, अंदर मैट्रिक्स में जा सकती है, ठीक है, और दूसरी प्रोटीन जा सकती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो उसका क्वेश्चन था कि अगर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन जानी हो तो कौन सा रास्ता यूज करेगा? टीम 23 सर। मैट्रिक्स के थ्रू जाएगा होते हुए इधर, या डायरेक्टली यहां से यहां आ जाएगा? तो अगर डायरेक्टली इधर से आएगा तो टीम 23, 22 यूज ही नहीं करेगा, है ना। और मैट्रिक्स के थ्रू जाएगा तो मैट्रिक्स के थ्रू जाने के लिए ये वाला रास्ता है 22, 23 से होके नहीं आएगा, सॉरी, मतलब 22 से होके इधर से नहीं आएगा, इसको अलाइन करना पड़ेगा, इसी प्रोटीन को, इन दोनों को साथ में अलाइन करना पड़ेगा, तब ये 23 के थ्रू आ सकता है, 23 के थ्रू।
ठीक है ना? सर ये नहीं समझा मुझे, इंटरमीडिएट जाना है ना, और बीच का स्पेस में मैट्रिक्स में नहीं जाने का है ना उसे, ना तो इंटरमीडिएट में कैसे आएगा? यही तो पूछा हुआ क्वेश्चन। गेस करो अभी। डायरेक्ट सर आएगा तो उसको डायरेक्ट आ ही नहीं सकता। टीम 22 23 की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ये सब तीनों नहीं होंगे तो ही तो इंटरमीडिएट में जाएगा ना। चलो अब गेस कर लिया, अब ये चलो तीनों देखते हैं कि कैसे होता है। हम देखो ये प्रोटीन कहाँ जा रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ध्यान से देखना, ये प्रोटीन कहाँ जा रही है, इसका टारगेट क्या है, मैट्रिक्स। हम बताओ, खुद ही बताओ देख के कि रूट कैसा ले रहा है। ये सिग्नल सीक्वेंसेस है, ठीक है, ये है प्रोटीन प्रिकर्सर, ठीक, एंड दिस इज द रिसेप्टर प्रोटीन इन टॉम कॉम्प्लेक्स, ये है रिसेप्टर, ठीक है, ये दिस इज अ रिसेप्टर। ठीक है ना, ये रिसेप्टर है प्रोटीन जो कि रिसीव कर रहा है सिग्नल सीक्वेंसर, सिग्नल सीक्वेंसर रिसीव कर लिया। अब क्या हुआ, इसको अंदर जाना है ना, इसने अलाइन करना शुरू किया टीम 23 को। अभी देखो रिसेप्टर यहाँ पे आ गया मूव करके, इसके अलाइनमेंट बना रहा है, ठीक, क्लियर हुआ। और जैसे अलाइनमेंट बनाया तो along with the signal sequences protein are coming inside, then what is happening, this signal must be cleaved by signal peptidase, and you can see the red color, there is a cleaved signal peptide, okay, and then this is a mature mitochondrial protein in the matrix space, but this protein can be delivered into the intermembrane space or not, this is the question, and if they are going, then how? अच्छा, एक क्वेश्चन भी यहाँ था कि अगर ये डिसरप्ट कर दें टॉम कॉम्प्लेक्स को, टॉम कॉम्प्लेक्स अगर डिस्टर्ब कर दें तो क्या प्रोटीन फिर भी अंदर आएगी? नो सर, तो नहीं आएगी, रिसेप्टर ही नहीं है तो अंदर नहीं जाएगी। आना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इफ in isolated outer membrane, for example, Tom complex can translocate the signal sequence of precursor protein across the membrane. Similarly, if the outer membrane is experimentally disrupted in isolated mitochondria, the exposed TIM23 complex can efficiently import precursor protein into the matrix space. जबकि ये true है कि TIM and TOM complex are working together to translocate the precursor protein across both membrane at same time, and they can work independently. ठीक है, लेकिन अगर टीम को डिस्टर्ब कर दें तब भी प्रोटीन का आना बंद नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो काफी वाइड होती है, ठीक है ना, तो दे कैन अलाउ प्रोटीन अप टू 5000 किलो डाल्टन, ठीक है, तो वो अलाउ कर सकती है, टॉम रहे ना रहे। लेकिन अंदर वाली जो प्रोटीन है टीम, वो क्या करती है, पुलर का काम करती है, खींचने का काम करती है। अगर वो ना रहे तो